So what he decided first? The doctor decided that he should write a letter to the chief of police and he should inform everything about the prisoner of war. But he left the letter in between. He kept the letter in a secret drawer, unfinished. Why did he do so? Actually, there might have hit a question in his mind that the chief of police may not understand his stand. You know, what his stance is, that might not be understood by the chief of police. You did something wrong. Under what circumstances you did, you know. And if you want to escape from that situation, you want that authority must also understand your circumstances, they must understand your stance. And if they do not understand, it means it's sure that action would be taken against you. You're getting my point, what I'm saying? So what he did, he did not post that letter to the chief of police, and then he was called by the general. So he told the general. Now question is, why did he tell the general? What we want, actually, we want that our situation should be understood. Doctor had not done anything wrong. He had only treated, since he was a doctor and it was his duty. That's why the general was in pain. That's why he told the general. He might have thought that general would understand his stance, his circumstances. हो सकता है जनरल उसकी बात को समझ ले, क्योंकि जनरल भी पेन में है. कई बार हमारे जैसे सिचुएशन में दूसरा बंदा होता है तो कहता है कि हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो इन द सेम सिचुएशन. हो सकता है. तो दिस माइट बी a reason why Dr. Sadao informed the general. So when he informed the general, general said that that Dr. Sadao might be hanged, might be given death penalty, death punishment for the crime he had done. लेकिन उसको आगे ध्यान आता है, वो कहता है कि but suppose I get you killed today, suppose you are punished today, and tomorrow I get an operation, again I have the heart attack, again I needed a doctor like you, then what would happen? This is selfishness of the general. So when he said this, Dr. Sadao straightforwardly, he was not a coward. देखो, Dr. Sadao कोई डरपोक और कायर आदमी नहीं था. उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि सर, इफ यू पनिश मी इट्स ओके, दैट्स फाइन, दैट वुड बी लॉ ऑफ द लैंड. वो तो देश का कानून है, मुझे सजा देगा. इफ इट इज डन and if I am killed, it's okay, there are so many, plenty of doctors are there, they can treat you. Then the general said, there are plenty of doctors, we have best doctors, but these doctors have been trained in Germany, and the best doctors who are trained in German, what do? They think even the patient is dead, they think that their operation is successful. He said that even if I am died, I am dead, they would say that their operation is successful. लेकिन उसने दो चीजें कही. He said that I do not, I have no objection to their stand. What they think they should, no problem. वो उनका स्टैंड क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है. Then he said that there are two things are there. One is German ruthlessness. Ruthlessness, we all know that Germans, they were very ruthless. Ruthless से मतलब होता है cruel, कि वो क्रूर है. जर्मनी का एक क्वालिटी है, क्वालिटी कहो, डिसक्वालिटी कहो, उनका एक स्पेशल पॉइंट है, और दैट इज देयर क्रूअलिटी. दे आर नोन फॉर देयर क्रूअलिटी. एंड अमेरिकन्स आर नोन फॉर सेंटिमेंट्स. दे आर सेंटिमेंटल, मीन्स इमोशनल. क्लियर? Because the doctors have been trained only in German, so they are only ruthless. But if a doctor is trained in America, the doctor is sentimental, and that is the reason the doctor had given shelter to the prison of war. ये इस बात का सबूत है. अगर डॉक्टर सदाव जर्मनी में ट्रेंड होते तो शायद उनको कुछ और सिखाया जाता. डॉक्टर की ड्यूटी के लिए सेंटिमेंटल होना, इमोशनल होना शायद नहीं सिखाया जाता.
तो जनरल ने ये कहा कि लेकिन क्या तुम एक जापानीज हो गए, कांट यू एब्जॉर्ब दीज टू क्वालिटीज इन यू, क्या तुम ये दोनों क्वालिटीज अपने अंदर नहीं ला सकते? कौन सी? रूथलेसनेस ऑफ जर्मन एंड सेंटिमेंटलिटी ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका की तरफ से इमोशंस ले लो, इनकी तरफ से रूथलेस ले लो, एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू डू जस्टिस विद द अमेरिकन ऑल्सो एंड विद मी ऑल्सो। यानी वो क्या कहना चाहता है, अगर आप हमसे सीख लो, जर्मनी से सीख लो रूथलेसनेस, अमेरिका से आप सीख लो सेंटिमेंटलिटी, इस कंडीशन में आप दोनों काम कर सकते हो। रूथलेस होके, क्रूअल होके तो आप उसको मार सकते हो, किसको? उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, क्योंकि आपके अंदर यू हैव अ क्वालिटी ऑफ रूथलेसनेस, यू आर अ रूथलेस पर्सन बिकॉज यू हैव द क्वालिटी ऑफ जर्मन्स, ठीक है। लेकिन चूंकि आपके अंदर सेंटिमेंट्स भी हैं, इमोशनल भी हैं, वो आप मेरे ऊपर लागू करो, एंड यू कैन सेव मी ऑल्सो, यानी मेरा ट्रीटमेंट तो करो बड़े इमोशन में आके, बचाने के इरादे से, और उसका ट्रीटमेंट करो क्रूर होके, रूथलेस होके। तो इस सोचने में बड़ी अजीबोगरीब सी बात है, देयर इज कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट आइडियाज हैं, विरोधाभासी, जिसको कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज हैं ये, किसके? जनरल के। तो डॉक्टर ने कहा कि योर हाइनेस आई विल ट्राई। तो डॉक्टर कहता है, देन जनरल सेड कि आई शुड नॉट बी द टेस्ट केस इन दैट वे एक्चुअली। फिर उसने आगे एक चीज और कही, उसने कहा कि आई कैन डू समथिंग फॉर यू, और वो मैं क्या कर सकता हूं? ही सेड कि आई विल सेंड माय पर्सनल असैसिन्स। असैसिन्स कौन होते हैं? हत्यारे होते हैं, प्रोफेशनल किलर्स होते हैं, जो कि तकरीबन हर बड़ा आदमी या मिनिस्टर रखता है अपने साथ, या पुराने जमाने में when they used to be absolute state, absolute state का मतलब होता है जहां पे पूरी पावर सेना के हाथ में होती है, जनरल के हाथ में होती है, या एक तानाशाही सरकार होती है, डिक्टेटरशिप होती है। तो उसने सोचा, डॉक्टर जनरल ने कहा कि मेरे पर्सनल असैसिन्स आएंगे एंड दे विल किल दैट पर्सन, दे विल रिमूव द बॉडी ऑल्सो। डॉक्टर सदाव सेड यस। अब हम अगर डॉक्टर सदाव के कैरेक्टर पे सवाल उठाएं, इफ वी क्वेश्चन हिज क्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स हिज कंट्री, हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर सदाव तो यहां तक राजी है, भाई इफ यू वांट टू किल दैट पर्सन, ओके यू गो एंड किल, आई एम नॉट कंसर्न्ड, आई एम नॉट सैड, आई वांट दैट पर्सन डेड बिकॉज दैट पर्सन इज आवर एनिमी। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उसको मारो, कुछ भी करो। तो वहां से डॉक्टर सदाव निकल लिए इलाज करके उसका, ही केम बैक, और जो घर आए तो ही डिड नॉट टेल हाना अबाउट ऑल दिस। क्यों? फालतू में जो अननेसेसरीली शी वुड बी इन टेंशन, शी वुड बी टेंस, ये सोच के कि अच्छा हमारे घर में असैसिन्स आएंगे, हत्यारे आएंगे। तो उसने सोचा व्हेन एवरीथिंग इज डन ही वुड टेल हाना अबाउट दैट एक्चुअली। इसने सोचा ये। Then he came first night, he could not sleep. First night he could not sleep. Second night also he could not sleep because it was windy. It was windy outside. और हल्का सा भी कोई नॉइज होता तो वो उठ जाता, उसको लगता है मे बी दिस नॉइज हैज बीन मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, उसको लगता है कि कोई आया है। फर्स्ट नाइट हुई, nobody came, अगले दिन जाके देखता है he was sleeping. Second night again the same thing happened. 2 नाइट तो हो गई है ना। तीसरी नाइट में क्या था? बारिश हो रही थी, रेन हो रही थी, और बहुत तेज आंधी भी थी। एक बार तो डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ दे ऑल गॉट अप। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे मैं आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू, और स्क्रीन को शेयर करके इस लेसन को रीड करते हैं। थोड़ा सा इससे आगे का जो पार्ट है उसको हम रीड करते हैं अभी। So let us see from here we will restart it. ये देखते हैं। अब ये दूसरा दिन था, nobody came to kill him.
Then the third night of course must be the night. उसने सोचा तीसरी नाइट को ऐसा होगा. The wind changed to quite rain. बारिश शुरू हो गई and garden was full of sounds of dripping eaves. है ना, dripping eaves and running springs. ठीक है, थोड़ा सा जो पानी की आवाज आती है ना, झरना सा चालू हो जाता, पानी टपकता है, पानी के टपकने की आवाज थी. Sadav slept a little better. थोड़ी सी उसको नींद आई, but he woke at the sound of a crash and leaped to his feet. एकदम से उठ जाता है वो. This is third night actually. एकदम से उठ के बैठ जाता है वो. Then what happened? What was that? Hana cried. जोर की आवाज आई तो हाना को लगा कि ये क्या था, वो भी उठ गई. The baby woke at her voice and began to wail. Wail means cry. वो भी रोने लग गया. I must go and see. But he held her and hold not let her move. बिल्कुल जाने नहीं दिया उसको. Sadav, she cried. What is the matter with you? Don't go, he muttered. Don't go. अब डॉक्टर सदाव को शायद लगा कि आज तो भाई जरूर उस आदमी को मारने के लिए assassins आ गए. His terror infected her and she stood breathless. वो भी खड़ी हो गई. उसके भी चेहरे पे थोड़ा डर था. किसके चेहरे पे? डॉक्टर सदाव के चेहरे पे डर था. उसको विश्वास हो गया था कि this is the night when the assassins have come and now they may be killing him. तो वो भी वहीं breathless, सांस रोक के खड़ी हो गई, waiting. There was only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. आराम से लेट गए और सो गए वो बेबी के साथ में. Yet when he opened the door of the guest room in the morning, there was a young man. अगले दिन फिर से वही हुआ, young man वहीं पे था. He was very gay. Gay means यहाँ पे happy था, खुश नजर आ रहा था. And had already washed and was now on his feet. है ना, अपने पैरों पे खड़ा था वो. He had asked for a razor yesterday and had shaved himself. Shaving भी कर ली उसने. And today there was a faint color in his cheeks. यानी उसके जो गाल थे cheeks में हल्का हल्का कलर था. कलर का मतलब क्या है? अब उसके चेहरे की रौनक क्या हो रही थी? लौट रही थी. It was coming back actually. So I am well, he said joyously. उसने कहा खुश होकर बोला कि मैं तो फाइन हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. Sadav drew his kimono round his weary body. He could not. He decided suddenly go through another night. एक चीज समझ में आ गई उसको. क्या समझ में आ गई? He could not go through another night. 3 रात हो गई है भाई. 1, 2, 3. और उसने सोचा अगली एक नाइट जो टेंशन है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं बिल्कुल भी. He could not tolerate that tension. क्यों टॉलरेट नहीं कर सकता उस टेंशन को वो? 3 दिन तो हो गए, घर में आदमी है. And he has informed the general also. जनरल ने आदमी पर्सन भेजे नहीं जो कि उसको भेजने चाहिए थे. तो उसने सोचा कि मैं एक नाइट का और वेट नहीं कर सकता. रीजन है, अगर वो वहां से अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया, लोगों को पता चल गया तो उसकी लाइफ भी खतरे में आ जाएगी. इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर हिज यंग मैन्स लाइफ. ऐसा इसलिए नहीं सोचा उसने कि एक रात और नहीं रख सकता इसको. ऐसा नहीं है कि वो उसको ये चाहता था कि उस बंदे को वो जाने दे या उसके लिए केयर करता था. सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन. है ना, उस आदमी की लाइफ के बारे में उसको कोई टेंशन नहीं थी. वो मरे जिए से कोई फर्क नहीं पड़ता. पॉइंट एक था कि वो अपने आप को, अपनी फैमिली को बचाना चाहता था. यू आर वेल, Sadav agreed. He lowered his voice. You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight with food and extra clothing in it, you might be able to row to the little island not far from the coast. देखो क्या कहा उसने. डॉक्टर ने कहा तुम बिल्कुल ठीक हो और इतने ठीक हो कि अगर मैं मेरी बोट को किनारे पे रख दूं तो आप उस बोट को चला के पास के आइलैंड पे पहुंच सकते हो. इट इज सो नियर द कोस्ट. बिल्कुल कोस्ट के किनारे पे है, पास में है. एंड इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. फोर्टिफाई होता है फोर्स लगाना सेफ्टी के लिए. फोर्टिफाई करना क्या होता है? सेफ्टी के लिए. तो उसने कहा कि 40 लोगों ने समझा नहीं. वर्थ फोर्टिफाइंग मतलब जरूरी नहीं समझा क्योंकि इतना पास हो गया. अब वो सोचेंगे यहाँ क्या सिक्योरिटी लगाएंगे, यहाँ कौन आएगा.
nobody lives on it, उस पर आइलैंड पे कोई रहता भी नहीं है, because in storm it is submerged, क्योंकि तूफान जब आते हैं तो ये submerged यानी कि पानी में डूब जाता है, दिखता भी नहीं है, तो वहां रह तो सकता नहीं कोई. but this is not the reason of storm, but this is not the season of storm. और अब जो है ना storm का सीजन नहीं है, पानी जो है आंधी और तूफान का समय बिल्कुल भी नहीं है. You could live there until you saw a Korean fishing boat pass by. तुम वहां कब तक रह सकते हो, उस आइलैंड पे रुको तुम जब तक कि कोई कोरिया की फिशिंग बोट ना आ जाए, मछली पकड़ने वालों की बोट ना आ जाए. कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड, वो बिल्कुल आइलैंड के पास से गुजरते हैं. बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथम्स डीप देयर, क्योंकि वहां पे पानी काफी गहरा है. तो स्टूडेंट्स एक रास्ता उसने बता दिया कि मैं अपनी बोट को वहां समंदर के किनारे पे छोड़ूंगा, आप उसमें जाओ, पास में देयर इज एन आइलैंड, यू गो टू दैट आइलैंड एंड देयर यू स्टे, वहां रुकोगे और कोरियन फिशिंग बोट आए उसमें आप बैठ सकते हो. द यंग मैन स्टेड एट हिम slowly comprehending. Do I have to, he asked. Doctor, I think so. Dr. Sadao gently. You understand? It is not hidden that you are here. अब ये छुपा हुआ नहीं है कि तुम यहाँ हो, यानी people have come to, लोगों को पता चल चुका है कि मेरे घर में एक अमेरिकन है. The young man nodded in perfect comprehension. Comprehension मतलब बिल्कुल समझ जाना. Comprehend करना होता समझना. बिल्कुल समझ गया वो. Okay, he said simply. सदाव डिड नॉट see him again until evening. उस दिन शाम तक सदाव जो है उससे मिला नहीं. As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore and in it put food, bottled water, and he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts. Quilts मतलब रजाइयाँ. He had bought at a pawn shop, है ना, वहां से दुकान से वो लेके आया पानी, रजाइयाँ, सब कुछ बोट में रख दिया. द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर. पानी के अंदर पोस्ट होता है जो खुट्टा सा होता है पानी के अंदर, उससे बोट को बांध दिया ताकि वो पानी में बहे नहीं. फॉर द टाइड वॉज हाई. टाइड मतलब लहरें बहुत तेज थी. देयर वॉज नो मून. अंधेरा था क्योंकि चांद की रोशनी भी नहीं थी. एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट. और किसी भी लाइट, फ्लैश लाइट होती है ना आपके मोबाइल में होती है या बैटरी होती है, बिना किसी बैटरी के उसने काम किया शाम को, यानी वहां पे बोट उसने फिक्स कर दी. When he came to the house, he entered as though he were just back from his work, and so Hana knew nothing. Hana को कुछ नहीं बताया उसने, और ऐसे आया जैसे ही काम से वापस आया. Yumi was here today, she said. वो खाना खा रहा था तो उसकी वाइफ ने बताया कि यूमी आई थी दिन में. She said she served his supper, though she was so modern. Still she did not eat with him. मॉडर्न थी लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ खाना नहीं खाती थी, उसको खिला के ही खाना खाती थी. Yumi cried over the baby. She went on with a sigh. She missed him so. यानी यूमी जो कि बच्चों को संभालती, वो भी बच्चों को याद करती है. The servants will come back soon as the foreigner is gone. Dr. Sadav said. सदाव ने कहा कि आ जाएंगे सब जैसे ही जाएगा फॉरेनर. He went into the guest room from night before he went to bed himself and checked everything. The American's temperature, मतलब सोने से पहले किसके रूम में गया वो, अमेरिकन के रूम में गया, उसका टेम्परेचर यानी बुखार चेक किया. स्टेट ऑफ द वुंड, उसका घाव कैसा है वो चेक किया. हिज हार्ट एंड पल्स. द पल्स वाज इरेगुलर, उसकी जो पल्स थी जिसको नब्ज बोलते हैं वो थोड़ी सी कम तेज थी. बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, लेकिन शायद वो क्योंकि वो वहां से भाग रहा था उस एक्साइटमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है. The young man's pale lips were pressed together and his eyes burned. आंखें बिल्कुल लाल थी उसकी, होंठ बिल्कुल बंद थे. Only the scar on his neck were red. I realize you are saving my life again, he told Sadao. अमेरिकन ने कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरी जिंदगी दोबारा बचा रहे हो. उसने कहा नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरी जिंदगी बिल्कुल नहीं बचा रहा. It is not inconvenient to have you here any longer.
सच तो ये है कि तुम्हें यहाँ रख पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए भगा रहा हूँ, मुझे आपकी जान की कोई चिंता नहीं है। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई डॉक्टर सदाव को, लेकिन उसने लाइट भी उसको दे दी, फ्लैश लाइट, बैटरी हम कह सकते हैं इन लोकल लैंग्वेज। बट ही हैड डिसाइडेड to give it to him after all. It was a small one. His own often he used to at night when he was called. उसकी अपनी बैटरी थी छोटी सी जिसको वो यूज करता था जब उसको रात को ऑपरेशन के लिए, उसके काम के लिए बुला लेते थे, तब वो उसको यूज करता था। इफ योर फूड रन्स आउट, डॉक्टर ने आगे कहा कि अगर खाना खत्म हो जाए बिफोर यू कैच द बोट, यानी कोरियन फिशिंग बोट ना आए और खाना खत्म हो जाए, ही सेड सिग्नल मी, मुझे सिग्नल देना, 2 फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन। कितने बजे? जैसे ही सूरज छिपे मुझे 2 फ्लैश लाइट देनी है। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में सिग्नल बिल्कुल भी नहीं देना है, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि अंधेरे में तो लाइट चमकती हुई दिख जाएगी, तो अंधेरे में सिग्नल नहीं दोगे। इफ यू आर ऑल राइट स्टिल देयर सिग्नल मी वंस, यानी अगर खाना खत्म हो जाए तो जैसे ही सूरज छिप जाए 2 बार फ्लैश लाइट देनी है, लेकिन अगर आप ठीक ठाक हो तो 1 बार फ्लैश लाइट आपको मुझे 1 बार सिग्नल देना है। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच, आपको कच्ची मछलियां मिलेंगी ताजा खाने के लिए, बट यू मस्ट ईट देम रॉ, अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि अगर आग जला के उनको पकाओगे तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि फायर को लोग देख लेंगे। ओके, द यंग मैन breathed. He was dressed now in the Japanese clothes, Japanese कपड़े पहनाए, which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth around his blonde head. एक ब्लैक सा कपड़ा जो ना उसके चेहरे पे उसने बांध दिया, यानी पूरी तैयारियां हो गई उसको वहां से भगाने की। फिर क्या हुआ? The young American without a word shook Sadao's hand warmly and then walked quite well across the floor and down the step into the darkness of the garden. Garden में गया, once twice Sadao saw his flashlight to find his way. हल्की हल्की लाइट तो उसने जलाई क्योंकि रास्ता देखने के लिए, but that was not be suspected. He watched until from the shore there was no one more flash. मतलब बिल्कुल लाइट भी फ्लैश लग रही थी, वो बैठा होगा बोर्ड में तभी उसने जलाई होगी, लेकिन उसके बाद वो वहां से गायब हो गया। He waited until from the shore there was no more flash, then he closed the partition. That night he slept. वहां से आके चुपचाप अपने सो गया। अब वो अगले दिन जनरल से मिलता है, तो जनरल ने उससे पूछा कि उसने जनरल को कहा कि सर वो तो भाग गया, वो आदमी तो चला गया है। You said the man escaped, the general asked faintly. He had been operated upon a week before the emergency operation to which Sadao had been called in the night. Actually 1 हफ्ता पहले डॉक्टर सदाव ने उसका ऑपरेशन किया था, ठीक है, और वो बहुत बीमार था, इस कंडीशन में नहीं था कि वो किसी की बात को सुन सके।